শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের ভূমিকায় আছি। শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে আনন্দ দান করা যায় তা জানতে হলে আমাদের অবশ্যই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম 9টি স্কন্ধ এবং তারপরে দশম স্কন্ধটি পাঠ করতে হবে। দশম স্কন্ধে শ্রীমতী রাধারানী ও অন্যান্য ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের মাধ্যমে তার লাদিনী শক্তির প্রকাশ হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা প্রথমেই শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত লাদিনী শক্তির সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য লীলায় প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু সাধারণ মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের রাধারানীকে আলিঙ্গন অথবা ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তার রাস নৃত্যের বর্ণনা পাঠ করে তার মূল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তারা ভগবানের সেই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকে জাগতিক কামের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে। ভ্রান্তিবশত তারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের মতো সাধারণ একজন মানুষ, এবং একজন সাধারণ মানুষ যেমন কামার্ত হয়ে একজন যুবতীকে আলিঙ্গন করে, কৃষ্ণ বুঝি সেই রকম ব্রজগোপিকাদের আলিঙ্গন করেন। এইভাবেই কিছু মানুষও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কারণ তারা মনে করে যে এটি এমনই একটি ধর্ম যেখানে निर्द्विधाय अवैध स्त्री संग लिप्त হওয়া যায়, उसीलिए भगवान को एक्सेप्ट करता है। সেটি কৃষ্ণ ভক্তি নয়, সেটিকে বলা হয় সেটিকে বলা হয় প্রাকৃত সহজিয়া বা জড়জাগতিক কাম। ইয়েস, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। এই ধরনের ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের হিন্দিতে পড়ুন। सॉरी, यह जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंधों को और फिर 10वें स्कंद को पढ़ना चाहिए। आपके पास बुक है क्या? चैतन्य चरितामृत बंगला है। आपने बंगला खरीदा? हाँ, ओके, हाँ पढ़िए। जिसमें उनकी लाजनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा ब्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वें स्कंद में कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते हैं। सामान्यतया कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं। वे मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान है और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसलिए रुचि दिखाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्रकृति सहित अर्थात भौतिकतावादी काम वासना है। आप म्यूट हैं। এই ধরনের ভ্রম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের রাধা কৃষ্ণের তত্ত্ব ভালোভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তিতে রাধা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস সম্পাদিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তি সম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের লাদিনী শক্তির তত্ত্ব অত্যন্ত দুরূহ। শ্রীকৃষ্ণ যে কে তা না জানা হলে শ্রীকৃষ্ণের লাদিনী শক্তিকে জানা অসম্ভব। এই জড় জগতে শ্রীকৃষ্ণ কোন রকম আনন্দ উপভোগ করেন না, কোন রকম, কিন্তু তার লাদিনী শক্তি রয়েছে। আমরা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাই এই লাদিনী শক্তি আমাদের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু
আমরা জ্বরের মাধ্যমে সেই শক্তিকে আস্বাদন করতে চেষ্টা করি, কিন্তু কৃষ্ণ এইরকম বৃথা প্রচেষ্টা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের লাদিনী শক্তির বিষয় হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। শ্রীকৃষ্ণ তার এই শক্তি প্রকাশ করেন রাধারানী রূপে এবং তারপর তার সঙ্গে প্রেম বিনিময় করেন। শ্রীকৃষ্ণ তার বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন না, কিন্তু তার অন্তরঙ্গা শক্তিতে রাধারানী রূপে লাদিনী শক্তির প্রকাশ ঘটিয়ে তার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তার অন্তরঙ্গা লাদিনী শক্তিকে উপভোগ করার মাধ্যমে জন্য নিজেকে রাধারানী রূপে প্রকাশ করেন। ভগবানের বহু অংশ প্রকাশ ও অবতারদের মধ্যে এই লাদিনী শক্তি হচ্ছেন সর্বোত্তম ও প্রধান। Yes, দিলীপ প্রভু। हरे कृष्ण। ऐसी त्रुटियों से बचने के एक सेकंड, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे अलादिनी शक्ति बोला है, तो हम जीव में भी है क्या? हाँ, उसीलिए तो वी आर, लादिनी शक्ति क्या है? प्लेजर पोटेंसी। तो हम लोग भी आनंद के संधान में रहते हैं। कृष्णा expanded his potency to in the form of Radharani so that he can enjoy. So he also has this tendency of enjoyment, and we being his part, we also have this tendency of enjoyment. लादिनी शक्ति हमारे में भी है, अंश है। दिलीप प्रभु। हरे कृष्ण। ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझे कि वास्तव में यह राधा कृष्ण है क्या। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत लादिनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है, और जब तक कोई यह न जान ले कि कृष्ण क्या है, तब तक वह इसे नहीं समझ सकता। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते, किंतु उनके पास लादिनी शक्ति रहती है। क्योंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारे भीतर भी लादिनी शक्ति है, किंतु हम उस लादिनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। किंतु कृष्ण इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की लादिनी शक्ति का लक्ष्य है राधा रानी, और वे अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आनंद नहीं लेते, अपितु वे राधा रानी के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति या लादिनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। इस तरह कृष्ण अपनी अंतरंगा लादिनी शक्ति को भोग करने के लिए अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अनेक विस्तारों, अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह लादिनी शक्ति अग्रगण्य और प्रमुख है। हरे कृष्ण। এমন নয় যে রাধারানী শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন, রাধারানীও শ্রীকৃষ্ণ, কেননা শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের বিশেষ কোনো তাৎপর্য নেই এবং শক্তিমান ব্যতীত শক্তিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। তেমনি রাধারানী ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের কোনো গুরুত্ব থাকতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত রাধারানীরও কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এই কারণে বৈষ্ণব দর্শনে সর্বপ্রথমে পরমেশ্বর ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির আরাধনা করা হয়। এইভাবেই ভগবান ও তার শক্তিকে সর্বদাই রাধা কৃষ্ণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি নারায়ণের উপাসকেরা প্রথমে লক্ষ্মী দেবীর নাম উচ্চারণ করেন, অর্থাৎ লক্ষ্মী নারায়ণ। তেমনি রামচন্দ্রের উপাসকেরা প্রথমে সীতা দেবীর নাম উচ্চারণ করেন। সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথমে শক্তি সম্বোধন করা হয়। ইয়েস, সুধাময়ী বল্লভী মাতাজি। हाँ प्रभु जी, हिंदी में पढ़े? नहीं, बंगाली में पढ़िए। नहीं, हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग हैं। राधा रानी की शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता।
बस एक सेकंड चलिए, स्क्रीन बहुत छोटा है। हाँ, आपके पास बुक नहीं है? ऐसा नहीं है। हाँ बुक प्रभु, ऐसा क्या आप ऐसा नहीं है। या नहीं है? बुक नहीं है प्रभु, बुक अमेजोन में देख रहे हैं, मंगाएंगे बुक। अमेजोन से आज ले लीजिए जितना जल्दी हो सके। शुरू हो गया हाँ क्लास। हाँ प्रभु, ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग हैं। राधा रानी भी राधा हट जा रहा है प्रभु, नहीं आ रहा है प्रभु। ये अद्भुत चंद प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग है, राधा रानी भी कृष्ण है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती है। इसी तरह राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति को नमस्कार करता है और उसकी पूजा करता है। इस तरह भगवान तथा उनकी शक्ति को सदैव राधा कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करते हैं वे सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इस तरह भगवान राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं। चाहे सीताराम हो, राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, सबों में शक्ति सबसे पहले आती है। हरि वैसे हरे कृष्णा, पहले हरे फिर कृष्ण। রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণ একই তত্ত্ব, কিন্তু কৃষ্ণ যখন আনন্দ উপভোগ করতে চান তিনি তখন নিজেকে রাধারানী রূপে প্রকাশ করেন। রাধারানী ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময়ই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা লাদিনী শক্তির প্রকৃত প্রকাশ। আমরা যদিও বলি যে যখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বাসনা করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কখন বাসনা করেন তা কেউই বলতে পারে না। আমরা এভাবেই বলি, তার কারণ হচ্ছে জড়জগতের বদ্ধ জীবনে আমরা মনে করি যে সবকিছু একটি শুরু হয়েছে, কিন্তু চিন্ময় জীবনে সবকিছুর পূর্ণ এবং তার শুরু নেই, শেষও নেই। কিন্তু তবুও রাধা ও কৃষ্ণ এক হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে দুই রূপে প্রকাশিত হয়েছেন তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এই প্রশ্নটি আপনা থেকেই মনে আসে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তার লাদিনী শক্তিকে উপভোগ করতে চান তখন তিনি নিজেকে রাধারানী রূপে প্রকাশ করেন, আর যখন তিনি রাধারানীর মাধ্যমে নিজেকে জানতে চান তখন তিনি রাধারানীর সঙ্গে আবার এক হয়ে যান এবং সেই সম্মিলিত রূপ হচ্ছেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের ৫ম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই সমস্ত ব্যাখ্যা করেছেন। রাজীব প্রভু। वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हम बना रहे हैं, थोड़ा दिक्कत अच्छा अच्छा, इंदिरावती माता जी। राधा तथा कृष्ण एक हैं और जब कृष्ण आनंद भोग करना चाहते हैं तो वे अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं। राधा तथा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय कृष्ण की अंतरंगा आह्लादनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं कि, किंतु हम यह नहीं कह सकते हैं कि कब। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्ध जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पुण्य है। इसका ना तो आदि होता है ना अंत। फिर भी यह समझने के लिए कि राधा और कृष्ण एक है तथा ये पृथक भी हो जाते हैं, हमारे मन में कब यह प्रश्न स्वतः उठता है जब कृष्ण ने अपनी आह्लादनी शक्ति
ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण इच्छा से, स्वेच्छा से राधा रानी को प्रकट किया, अपना ही फ्रॉम सेल्फ। तो प्रश्न उठ सकता है कब? कब का कोई ठीक नहीं है। व्हेन टाइम इटर्निटी। आगे। जब प्रभु दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास वो बुक नहीं है? आप लोग कृपया भी सब बुक लीजिए। अभी चैतन्य चरितमृत, अभी भाद्र पूर्णिमा का डिस्काउंट भी चल रहा है, प्लीज सब लीजिए। ये तो अभी चलेगा 1-1.5 साल। अभी दिखाई दे रहा है? अच्छा, वो करने की इच्छा थी। जिनके पास बुक है पढ़िए, प्रभु माधव सर को पढ़िए। जब कृष्ण ने अपनी अनाग्नि शक्ति का भोग करने की इच्छा की, तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी से अलग रूप में प्रकट किया, और जब उन्हें राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए, और वह सम्मिलित रूप भगवान चैतन्य कहलाता है। यह सब श्रीला कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितमृत के 5वें श्लोक में समझाया गया है। শ্রীকৃষ্ণ কেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর রূপ গ্রহণ করেন তা পরবর্তী শ্লোকে গ্রন্থাকার পুনরায় ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারানীর প্রণয়ের মহিমা কি রকম তা জানতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতে চেয়েছিলেন শ্রীমতী রাধারানী কেন আমাকে এত ভালোবাসেন। আমার মধ্যে কি এমন বিশেষ গুণ রয়েছে যে তাকে এইভাবে আকৃষ্ট করে, আর কিভাবেই বা সে আমাকে ভালোবাসে। পরমেশ্বর ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কারোর ভালোবাসার প্রতি আকৃষ্ট হবেন তা আপাত দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলে মনে হয়। আমরা স্ত্রী অথবা পুরুষের প্রেমে আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ আমরা অপূর্ণ এবং আমাদের মধ্যে কোনো না কোনো কিছুর অভাব রয়েছে। পুরুষের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রেম, শক্তি ও আনন্দ অনুপস্থিত, তাই একজন পুরুষ একজন স্ত্রীকে চায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বেলায় তেমন হয় না, তিনি স্পষ্টভাবে পূর্ণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময় প্রকাশ করেন, কেন আমি রাধারানীর দ্বারা আকৃষ্ট হই। আর রাধারানী যখন আমার প্রেম অনুভব করেন তখন সেটি প্রকৃতপক্ষে কি রকম। সেই প্রেমের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু যেভাবে সমুদ্রের দিগন্ত থেকে চন্দ্রের উদয় হয়, ঠিক যেভাবে সমুদ্র মন্থনের ফলে চন্দ্র উত্থিত হয়েছিল, সেভাবে চিন্ময় প্রেম মন্থন করে শ্রী শ্রী চৈতন্য চন্দ্রের উদয় হয়েছে। হরিব। বাস্তবিকই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অঙ্গ কান্তি ছিল চন্দ্র কিরণের মতো তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব প্রসঙ্গে এটি একটি অর্থব্যঞ্জক উপমা। তার আবির্ভাবের পূর্বে পূর্ণ তাৎপর্য পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে। मुकुंद प्राण प्रभु। अगले श्लोक में लेखक बताते हैं कि कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया। ऐसा बतलाया जाता है कि कृष्ण ने राधा के प्रेम की महिमा जाननी चाहिए थी। कृष्ण जानना चाहते थे कि वह मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है। आखिर मुझ में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो उसे इस तरह आकृष्ट करता है, और वह वास्तव में किस प्रकार से मुझसे प्रेम करती है। यह विचित्र लगता है कि परमेश्वर कृष्ण किसी के प्रेम से इस प्रकार आकृष्ट हों। एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम को इसलिए चाहता है क्योंकि वह अपूर्ण है और उसमें कुछ कमी है। स्त्री का प्रेम, वह शक्ति और वह आनंद पुरुष में नहीं मिलता। अतएव मनुष्य स्त्री को चाहता है, किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं में पूर्ण है। इसलिए कृष्ण ने आश्चर्य प्रकट किया, मैं राधा रानी के द्वारा आकृष्ट क्यों होता हूँ, और जब राधा रानी मेरे प्रेम का अनुभव करती है तब उसे कैसा लगता है। इस प्रेम व्यापार के सार का आस्वादन करने के लिए कृष्ण उसी तरह प्रकट हुए हैं
जिस तरह समुद्र के क्षितिज पर चंद्रमा प्रकट होता है, जिस तरह समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ था, उसी तरह आध्यात्मिक प्रेम व्यापार के मंथन से चैतन्य महाप्रभु रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु का वर्ण सुनहला था, जैसा कि चंद्रमा का होता है। यद्यपि यह अलंकारिक भाषा है, किंतु इससे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे जो अर्थ है वह प्रकट होता है। उनके आविर्भाव का पूर्ण महत्ता की व्याख्या बाद के अध्याय में শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভুকে 7টি শ্লোকের মাধ্যমে তার श्रद्धार्घ्य निवेदन करेছেন। ओके, तो पहला कितना श्लोक में भगवान गौरांग महाप्रभु को स्तुति किया? 5 नंबर। आप लोग का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। 5 नंबर प्रभु जी, 5 नंबर। पहला 5 ठो महाप्रभु के लिए पहला 5 ठो है। उसके बाद नित्यानंद प्रभु के लिए 7 ठो है। श्योर, ये 12 ठो है महाप्रभु के लिए। यहाँ पे 5वां श्लोक और 7वां श्लोक के बारे में बोल ना, प्रभु के 7टी श्लोकेर माध्यमे 7टी माने हम लोग में हमें हम लोग का प्रभु हम लोग के इंग्लिश हम लोग के 7वें श्लोक में प्रभु जी ये हुआ है। 7वें लिखा है क्या? 7th verse, 7 offering them to Lord Nityananda, 7th verse of the Chaitanya Charitamrita, 7th verse। ओके, এখানে লিখা আছে 7টি শ্লোকের মাধ্যমে তার মানে এনিওয়েজ গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করেছেন যে নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন মহাবিষ্ণুর উৎস বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিস্তার বলদেব রূপে, তার অংশ সংকর্ষণ রূপে এবং সংকর্ষণের অংশ প্রদ্যুম্ন রূপে প্রকাশিত হয়। এভাবেই বহু অংশে প্রকাশের বিস্তার হয়। বহু রূপে প্রকাশিত হলেও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ, সেই কথা ব্রহ্ম সংহিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি হচ্ছেন মূল প্রদীপের মতো, যার থেকে असंख्य प्रदीप जलाना हो जाए। कौन सा श्लोक है? दीपाचिदेव ये दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म। असंख्य प्रदीप জ্বালানো হলেও প্রথম যে প্রদীপটি থেকে সমস্ত প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়েছিল সেটি হচ্ছে মূল প্রদীপ। এভাবে শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে নিজেকে বিস্তার করেন এবং সেই সমস্ত প্রকাশ শব্দের বলা হয় বিষ্ণু তত্ত্ব। বিষ্ণু হচ্ছেন বিশাল প্রদীপ আর আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ, কিন্তু সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিস্তার। कैसे मना करेंगे माता जी? 5वें श्लोक में बोला गया कि महाप्रभु का वर्णन है और 7वें श्लोक में नित्यानंद प्रभु का, 6ठे का नहीं बताया। हमको जितना दूर याद है 1 से 6 महाप्रभु, 7, 8, 9 नित्यानंद प्रभु, 10, 11 शायद अद्वैताचार्य और 12 बाकी सब ऐसे कुछ है। आप इसके पहले बहुत अच्छे से करवाए थे, हम लोग भूल गए। हाँ, यस, अद्वैताचार्य प्रभु। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये 13 श्लोका से अद्वैताचार्य जी के विषय में आता है। अच्छा, और तो 1 से 6 5th श्लोका में एक्चुअली जो राधा रानी का भाव लेके जो भगवान प्रकट होते हैं, जिसके बारे में इसमें परिचय बताया जा रहा है, वो भाव के विषय में 5वें श्लोक में मतलब महाप्रभु के बारे में ही बोला जा रहा है। हाँ, उनके अवतरण होने के कारण जो है राधा रानी का भाव लेते अंतरंगा। 1 नंबर से कितना तक महाप्रभु के लिए है? 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक जो है महाप्रभु जी के विषय में है। और 7वें से शुरू हो रहा है नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु का 7 से 12 और 13 में अद्वैताचार्य।
7 से 12 13 में अद्वैत है। ओके, यस, पढ़िए माता जी हिंदी। चैतन्य चैतामृत के 7वें श्लोक में चैतन्य, ये वाला हो गया था ना प्रभु, यही वाला ठीक है। पढ़, हाँ। नहीं यही है, पढ़िए। नहीं हुआ। चैतन्य चैतामृत के 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद कृष्णदास कविराज भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते। राजीव प्रभु, वो अभी तो बोला गया था 2 से 6 नंबर श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया, तो 7वें श्लोक में ऐसे लिखा है चैतन्य चैतन्य के 7वें श्लोक में नित्यानंद प्रभु, हाँ नित्यानंद प्रभु के, यहाँ लिखा चैतन्य चैतन्य के 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद। अच्छा, यस, कंटिन्यू माता जी। वे बतलाते हैं कि भगवान नित्यानंद बलराम हैं, जो महाविष्णु के उद्गम है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम हैं, जिनका एक अंश संकर्षण के रूप में प्रकट होता है। संकर्षण के बाद वे प्रद्युम्न रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उनके अनेक विस्तार होते हैं। यद्यपि विस्तार अनेक हैं, किंतु श्री कृष्ण ही स्रोत है। जैसी कि ब्रह्म संहिता से पुष्टि होती है, वे उस मूल दीपक के तुल्य है जिससे हजारों लाखों दीपक जलाए जाते हैं। यदि मूल दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, किंतु स्रोत के रूप में मूल दीपक की अपनी पहचान होती है। इस तरह कृष्ण अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं और ये सारे विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। विष्णु एक विशाल दीपक है और हम सब छोटे छोटे दीपक है, किंतु हैं सभी कृष्ण के ही अंश। हरे कृष्ण। যখন জড়জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয় তখন বৈকুণ্ঠের সংকর্ষণ নিজেকে महाविष्णु रूपे प्रकाशित करें। अच्छा, एक चीज है कि भगवान का पहला एक्सपेंशन तो आपका बलराम है और तार अंश संकर्षण रूपे एवं संकर्षण अंश प्रद्युम्न रूपे प्रकाशित है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन इज बलराम। फिर जो फर्स्ट क्वाड है, फर्स्ट चतुर्व्यूह, तो उसमें बलराम जी का संकर्षण और संकर्षण से प्रद्युम्न यहां तक दिया हुआ है। फिर शायद प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से वासुदेव ऐसे होगा। इट्स नॉट दैट बलराम जी से 4 ठो एक साथ निकल रहे, नहीं, बलराम जी से एक एक करके फिर फर्स्ट क्वाड हुआ। फिर जी हम लोग पहले वासुदेव समझते हैं ना, वासुदेव यहाँ जो संकर्षण लिखा है मैं यही पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो लिखा है, यहाँ तो लिखा है तार अंश, अभी तो आपने पढ़ा भी हिंदी में। और फिर सेकेंड क्वाड जो है वो भी संकर्षण से निकलता है। फर्स्ट क्वाड का संकर्षण से सेकेंड क्वाड का चारों निकलता है। माने आई डोंट नो क्या क्रोनोलॉजी है, देखना पड़ेगा। बोलिए आप क्या पूछ रहे हैं। प्रभु जी यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में लिखा है कि विष्णु एक विशाल दीपक है और हम सब छोटे छोटे दीपक है, किंतु है सभी कृष्ण के अंश। तो हम लोग जो दीपाचिरेव जो वाला ब्रह्म संहिता में है, उसमें तो विष्णु तत्व के लिए ही है ना सारा। हम लोग जैसे सही है। विष्णु হচ্ছেন विशाल प्रदीप और আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র प्रदीप। यस, वो तो हमको जितना मालूम है वो तो विष्णु तत्व के लिए ही है, यानी आदि अनादि आदि गोविंदा। लेकिन यहाँ तो लास्ट लाइन में तो हम लोग के लिए बोला गया है। ये भी गलत नहीं है अगर देखा जाए तो। हम लोग सब भगवान का ही अंश हैं और हम लोग सबका अगर उत्स कौन है, हम लोग सबका सोर्स कौन है, वो भी भगवान कृष्ण ही है। तो ये भी गलत नहीं है। बट इसको आइसोलेटेड स्टेटमेंट लेना है, उसको पहला वाला से जोड़ना से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, যখন জড়জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয় তখন বৈকুণ্ঠের সংকর্ষণ নিজেকে মহাবিষ্ণু রূপে প্রকাশিত করেন। तार माने सेकेंड क्वाड्रिलेटरल का जो संकर्षण है उससे पुरुष अवतार प्रकाश कर रहे हैं, करेक्ट। द्वितीय चतुर्भुज का जो संकर्षण है उसी से महाविष्णु माने पुरुष अवतार, पहला पुरुष अवतार प्रकाशित हो रहा है।
क्लियर है ना सबका? सबाई तो एकदम मन হচ্ছে কি বলা হচ্ছে प्रभु तो पहले ये बलराम जी को ही ना बोला जाएगा प्रभु, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम? सेकंड क्वार्ट का बात कर रहे हैं, सेकंड चतुर्भुज, दूसरा प्रभु जी, चतुर्भुज का जो प्रभु जी यहाँ पे बताया गया कि बलराम जी से पहले संकर्षण निकले। वो तो हो गया पहला पैराग्राफ, हम इस पैराग्राफ का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद तो फिर बताया ही नहीं गया। उसके बाद तो यहाँ पे सीधा ही बोल रहे कि विष्णु अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं। সংকর্ষণ যখন তখন বৈকুণ্ঠের সংকর্ষণ নিজেকে মহাবিষ্ণু রূপে প্রকাশিত করে। বৈকুণ্ঠের সংকর্ষণ মানে सेकंड वाला संकल्प वाला संकर्षण होगा ना। यहाँ पे संकर्षण लिखा ही नहीं है हम लोग के हिंदी बुक में। अच्छा, फिर तो अलग बात है। यस, कालिंदी सुविलासिन। प्रभु जी सेकंड संकर्षण किन से आए? फर्स्ट तो बलराम जी से आए, तो सेकंड भी उन्हीं से आया क्या? सेकंड संकर्षण सेकंड फर्स्ट क्वार्ट से सेकंड क्वार्ट में आया। तो स्रोत बलराम जी ही ना हुए प्रभु, बलराम से तो फर्स्ट सेकंड जो आ रहा है तो बलराम जी से नहीं हो रहा है। नहीं, बलराम से फर्स्ट आता है, फर्स्ट से सेकंड जाता है। हमको जितना दूर याद है शायद वासुदेव से ही सेकंड वाला जाता है। फर्स्ट वाला वासुदेव से, सेकंड वाला शायद, आई एम नॉट श्योर। इंद्राणी माता जी প্রথমটা মহাসংকর্ষণ বলে আর পরেরটাকে শুধু সংকর্ষণ বলে। ঠিক আছে, কিন্তু প্রথম কার থেকে পরেরটা শুরু হয়? संकर्षण से। यस, संकर्षण से प्रथम संकर्षण से सेकंड वाला संकर्षण होता है और सेकंड वाला संकर्षण से पुरुष होता है। हाँ, ओके। এই মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্রে शायित माने कारण समुद्र में लेटे रहते हैं। भारती माता जी अगर वो फोटो दिखा, पंकज को वो फोटो दिखाइए ना, ये महाविष्णु लेटे हुए हैं। এই মহাবিষ্ণু কারণ সমুদ্রে শায়িত হন এবং তার নিঃশ্বাসের প্রভাবে নাসিকারধ্য থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়। এইভাবেই মহাবিষ্ণু থেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব হয় এবং সেগুলি কারণ সমুদ্রে ভাসমান থাকে। এই সম্বন্ধে বামন দেবের লীলা বিলাসের একটি কাহিনী রয়েছে। হ্যাঁ বলুন। তো এর আগে আমি শুনেছিলাম যে বিষ্ণুর গায়ের থেকে যে বাবলস বেরোয় সেইখান থেকে ব্রহ্মাণ্ড শুরু হয় সৃষ্টি, তাই তো বলা হচ্ছে। এখান থেকে নাসিকা রন্ধ্র থেকে বলছে। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে প্রলয়ের পর, মানে দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। ইনিশিয়ালি ফ্রম মানে লোমকূপ থেকেও বলে ভগবানকে লোমকূপ সে, বাস যখন প্রলয় হয় তখন ভগবান যখন শ্বাস নেন সব প্রলয় সব ভেতর নাকের ভেতর চলে যায়, আবার যখন শ্বাস ছাড়ে সেগুলো আবার বেরিয়ে যায়। এটা তো আমরা এই সম্বন্ধে বামন দেবের লীলা বিলাসের একটি কাহিনী রয়েছে। বামনদেব যখন 3টি পদক্ষেপে বলি মহারাজের সমস্ত কিছু আত্মসাৎ করেছিলেন তখন তার পদবিক্ষেপের ফলে নখের আঘাতের ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয় এবং সেই ছিদ্র পথে কারণ সমুদ্র থেকে কারণ বাড়ি প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে এক কারণ বাড়ির সেই জলস্রোতই হচ্ছে গঙ্গা নদী। তাই গঙ্গার জল হচ্ছে শ্রী বিষ্ণুর পাদ পদ্ম ধৌতকারী মহাপবিত্র জল এবং হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হয়। ये क्या दिखा रहे हैं आप? ब्रह्मांड दिखाई, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो मैप, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड का जो मैप। हिंदी पढ़िए सत्यभामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम ग्रुप हरे कृष्ण प्रभु। जब भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करनी होती है तब विष्णु अपना अवतार महाविष्णु रूप में करते हैं। ये महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपने नासारंध्रों से श्वास के साथ सारे ब्रह्मांड को बाहर निकालते हैं। इस तरह ये नहीं चाहिए प्रभु, नॉर्मल जो ब्रह्मांड वाला हम लोग दिखाते हैं। कंटिन्यू करिए माता जी। नासारंध्रों से श्वास के साथ सारे ब्रह्मांड को बाहर निकालते हैं। इस तरह महाविष्णु तथा कारण सागर से समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है और ये
सारे ब्रह्मांड जिनसे हमारा ब्रह्मांड भी सम्मिलित है कारण सागर में तैरते रहते हैं। इस संदर्भ में वामन की कथा आती है एक जिन्होंने सेकंड। हाँ भारती माता जी, आपने ग्रुप में भेज दिया। हाँ प्रभु जी। यस, बोलिए माता जी। इस संदर्भ में वामन की कथा आती है जिन्होंने जब अपने 3 पग भरे और उनका पांव इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद गया और इस तरह से उनके पग में बने छेद से कारण सागर का पानी बहने लगा। कहा जाता है कि यही जल प्रवाह गंगा नदी बन गया। इसलिए गंगा को विष्णु का सबसे पवित्र जल माना जाता है और वह सारे हिंदुओं द्वारा हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूजित है। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग देखेंगे अभी फोटो में कैसे महाविष्णु लेटे हुए हैं कारण सागर में। अगला पैरा, কারণ সমুদ্রে শায়িত মহাবিষ্ণু হচ্ছে বলরামের প্রকাশ, আর বলরাম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ এবং বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे 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 राम 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 हरे हरे। 1600 অক্ষর সমন্বিত এই মহামন্ত্রে রাম শব্দ দ্বারা বলরামকে সম্বোধন করা হয়। নিত্যানন্দ প্রভু যেহেতু স্বয়ং বলরাম, তাই রাম শব্দে নিত্যানন্দ প্রভুকেও বোঝানো হয়। এভাবেই হরে রাম কেবল কৃষ্ণ ও বলরামকেই সম্বোধন করে না, তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুকেও সম্বোধন করে। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের বিষয়বস্তু মুখ্যত জাগতিক সৃষ্টির অতীত তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করে। এই জড় সৃষ্টিকে বলা হয় মায়া, কারণ এর কোনো নিত্য অস্তিত্ব নেই, কারণ তা কখনো প্রকাশিত এবং কখনো অপ্রকাশিত, তাই তার নাম মায়া। কিন্তু অনিত্য এই জড়জগতের ঊর্ধ্বে এক পরা প্রকৃতি রয়েছে। সেই সম্বন্ধে ভাগবত গীতায় 8ম অধ্যায় 20 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, परस्तस्तातु भावोह नोह व्यक्त सनातन जश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यस, थोड़ा जूम करिए प्रभु, ऊपर वाला एकदम जूम करिए, जड़ जगत का ऊपर वाला। जड़ जगत और जूम करिए, और 10 टाइम जूम करिए। जड़ जगत के ऊपर वाला, जड़ जगत, मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, अभी जूम करिए प्रभु, जूम करिए। ये देखिए कारण सागर में लेटे हुए हैं महाविष्णु, उनको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, उसीलिए लिखा है कारणोदक्षाई महाविष्णु, मैंने दोनों का नाम एक साथ लिख दिया। और लिखा है विरजा नदी के नीचे लिखा है कॉजल ओशन, कारण सागर। और नीचे और एक चीज लिखा है, अनलिमिटेड यूनिवर्स एमिनेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ स्किन। हालांकि यहाँ लिखा है नाक और अंदर से, नाक के फुटों से, लेकिन अभी स्किन के पोर्स से कब होता है और नाक के अंदर से कब होता है? सृष्टि के समय शायद स्किन के पोर्स से होता है, और प्रलय होने से अंदर बाहर, फिर अंदर, माने महाप्रलय के अंदर फिर बाहर, ऐसे कुछ। एनीबॉडी नोज द डिफरेंस? स्किन से कब और नाक के अंदर से बाहर से कब, या दोनों एक साथ? তো যে নাক থেকে নেওয়াটা এইখানেই বলেছে, এর আগে বলেছে যখন প্রলয় হয় তখন উনি লিপট লেতা, মানে হিন্দিতে লিপট লেতাকে মানে কি বডির মধ্যে নিয়ে যাওয়া। मैं गौरांग प्रभु, व्हाट इज योर व्यू? प्रभु पोर से ही निकलता है, और कभी जब प्रश्वास ले लेते हैं उस समय में नाक से जा सकता है। अभी
वो तो ज्यादा से ज्यादा पोर से ही बोलते हैं, कभी एक एक जगह में बोला गया है नाक से भी जाता है। ओके, ठीक 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 है, ठीक है। तो हम लोग देखें- प्रभु कारण सागर बिरजा नदी के नीचे आता है। हाँ, अभी विरजा नदी को भी शायद कारण सागर का ही एक पार्ट है। एक ही है, माने एक कारण सागर और बिरजा एक ही है, माने इसका नाम है। माने पूरा ही कारण सागर का विरजा नदी है। उसको ही बिरजा बोलते हैं। आई थिंक द लास्ट एंड इज बिरजा नदी, बिकॉज ये बिरजा नदी बाइफरकेट करता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मटेरियल वर्ल्ड से। सो द एंड पार्ट ऑफ द कारण सागर इज बिरजा नदी, उसीलिए बिरजा नदी के ब्रैकेट में लिखा है कारण सागर, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कारण सागर। प्रभु जी, कारण सागर का जल ही तो ब्रह्मांड के अंदर आता है ना, जब वामन देव ने पांवों से हाँ, तो उसीलिए विरजा नदी बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो विरजा नदी और दोनों एक ही चीज का नाम है, दो नाम है। पूरा ही कारण सागर विरजा नदी है। अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि बोला जाता है ना कि भौतिक जो ब्रह्मांड है और आध्यात्मिक जो है, दोनों को ये विरजा नदी या कारण सागर ही अलग करते हैं। ओहो, मैं वैतरणी नदी को बारे में सोच रहा था। वो तो नीचे नरक में हो गया, नरक में। ओके, क्या। एनीवेज, अगला हो गया या यस, इसका हिंदी पढ़ी। अच्छा, ये थोड़ा और बाकी, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं हिंदी। यस, पंकज प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, वो स्क्रीन शेयर नहीं होगा, देखना पड़ेगा। स्क्रीन शेयर कौन कर रहा था? दिलीप प्रभु। बबीता माता जी। अच्छा, आप पढ़िए। बुक लाना। काउथ किस तरह रेडी रखिए प्लीज, सुधा में वल्लभी माता जी। पढ़े प्रभु? हाँ, पढ़िए। तथापि एक दूसरे अव्यक्त प्रकृति भी है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे। नहीं, ये ब्लैक, ये नहीं है। यहाँ से नहीं, वास्तव में महाविष्णु बलराम के विस्तार हैं। कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं और वृंदावन की लीलाओं में कृष्ण के भाई हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र में राम बलराम के लिए आया है, क्योंकि भगवान नित्यानंद बलराम के विस्तार हैं, अतएव राम शब्द भगवान नित्यानंद का भी सूचक है। इसीलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। यस, आगे। इस तरह हरे कृष्ण हरे राम में न केवल कृष्ण तथा बलराम को, अपितु भगवान चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को भी संबोधित किया जाता है। चैतन्य चरितामृत की विषय वस्तु मुख्यतः इस भौतिक सृष्टि से परे की विवेचना से संबंधित है। जगत का भौतिक विस्तार माया कहलाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व शाश्वत नहीं है, क्योंकि यह कभी प्रकट होता है और कभी अप्रकट रहता है। इसलिए यह माया यानी कि भ्रामक माना जाता है। किंतु इस नश्वर जगत से परे एक उच्चतर प्रकृति है, जिसका संकेत भगवद गीता 8.20 में प्राप्त होता है। परस्तस्मातु भाव अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कल ये जगत के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृतला हरि, बदन भरिया सबे बल हरि हरि।